ہمیں یہ بتائیے گا کہ ساتھ ہی جو لوگ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں، رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے، کون کون سے بینیفٹس ہیں جو کہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس فورم پہ مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ادارے کے جو اس کی اچیومنٹس ہیں، جو ادارہ سوشل سیکورٹی کام کر رہا ہے اس وقت لیبر کی ویلفیئر کے لیے، وہ میں آپ کے توسط سے عام لوگوں تک بھی پہنچاؤں. ایکچولی یہ ہے کہ سوشل سیکورٹی سے آگاہی جو ہے وہ سب سے ضروری ہے کہ سوشل سیکورٹی کیا کر رہا ہے، سوشل سیکورٹی کس طرح کام کر رہا ہے، یہ جاننا سب سے ضروری ہے. سوشل سیکورٹی کے اس وقت تقریباً 1,03,000 جو صنعتی و کمرشل ادارہ جات ہیں، ان کے تقریباً 14 لاکھ سے زائد لوگوں کو سوشل سیکورٹی کے ساتھ منسلک ہیں، رجسٹرڈ ہیں. جو سوشل سیکورٹی کے ادارے میں جب ایک ادارہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو ایک ہمارا ایک قانون کے اندر رہتا ہے. یہ 1965 میں گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک قانون نافذ ہوا جیسے پروونشل امپلائی سوشل سیکورٹی آرڈیننس 1965 کے تحت آیا. اب اس میں قانون کے تحت ہم نے ورکر کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کی پیمنٹس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. ہم نے اس قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے. اب اس وقت 1,03,000 سے زائد جو ادارہ جات ہیں، ان میں تقریباً 14 لاکھ سے زائد جو ورکر ہیں وہ سوشل سیکورٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور ان کے تقریباً 85 لاکھ ڈپینڈنٹ. اب ڈپینڈنٹ میں اس کے بیوی آئے گی، اس کے بچے آئیں گے، اس کے والدین آئیں گے، کوئی اور پرائیویٹ انشورنس کمپنی بھی ہوں گی جو مزدور کے لیے مختلف فیکٹریوں کے ساتھ اپنا ایک ایگریمنٹ کرتی ہیں ورکر کو سہولتیں دینے کے. کسی کے ڈپینڈنٹ میں والدین شامل نہیں ہیں، لیکن پیسے میں ڈپینڈنٹ پیرنٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. بالکل اس میں سوشل سیکورٹی میں اب اور کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ یہ ورکر ہے اور یہ اس کے ڈپینڈنٹ ہے. ایک ہی علاج معالجہ ہے، اچھا، ایک پیناڈول کی گولی سے لے کر کارڈیک سرجری تک فری ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو سوشل سیکورٹی میں مزدور کی ویلفیئر کے لیے جو ادارہ یہ سوشل سیکورٹی کر رہا ہے، بینیفٹس اس کے علاوہ ہیں. میڈیکل کیئر فیسلٹیز کے علاوہ بینیفٹس بھی ہیں. 14 طرح کے ہم بینیفٹس ورکر کو دے رہے ہیں. اچھا، جس میں سب سے پہلے ہم اس کو جو ورکر ایڈمٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ہمارے کسی ہاسپٹل کے سامنے میڈیکل سٹور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہر میڈیسن ہر طرح کی اس کی بیڈ کے اوپر پہنچانی ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ پرچی پکڑو آپ باہر جو سٹور سے چیز لے کے اٹینڈنٹ کو یا اور جتنے دن وہ پیشنٹ ہمارے پاس ایڈمٹ رہے گا، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، ہم 750 روپے اس کو ڈائٹ چارجز کی مد میں دیں گے. جو ہی وہ ڈسچارج ہوتا ہے ہم اس کو اس کے اکاؤنٹ میں، ہمارا سارا نظام ڈیجیٹائز ہے. ویسے ایک ایسا ادارہ ہے جس میں رجسٹریشن سے لے کر ورکر کے بینیفٹس تک ہر چیز اس کے اکاؤنٹ میں جانی ہے. اچھا، یہ تو بہت ہی بینیفٹس کی تو اور مزید بات کریں گے کہ کیا کیا مزید سہولتیں دی جا رہی ہیں. یہ بتائیے گا ابھی تک سوشل سیکورٹی میں کتنے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، کتنے مزدور رجسٹرڈ ہیں، اور کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے، کس ٹائپ کے مزدور جو ہیں وہ رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں؟ ہم نے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت آن لائن رجسٹریشن ہے، ہیومن ہینڈ کو ہم نے پیچھے کر دیا. صحیح. آن لائن جو ہے اب ریسنٹلی ایک بہت بڑا انیشیٹو مریم نواز راشن کارڈ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک لانچ کیا ہے. جی، ہمارے کمشنر صاحب نے اس میں دن رات ہم نے لوگوں نے ایک ٹیم نے محنت کی ہے. ہمارے منسٹر صاحب، سیکرٹری صاحب، انہوں نے محنت کی ہے. ہم نے 12 لاکھ لوگوں کو راشن کارڈ دیا ہے. مریم نواز راشن کارڈ 12 لاکھ سے زائد لوگوں کو ہم نے دے دیا ہے، اور ہر مہینے 3,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، جس سے وہ اپنی گھر کے راشن وغیرہ اس کو راشن کارڈ اس لیے کیا گیا کہ وہ 62,000 ہماری آؤٹ لیٹس ہیں بینک آف پنجاب کی، جہاں پہ جا کر وہ اس نمائندے سے اپنا سودا سلف گھر کی ضروریات خرید سکتے ہیں. یہ سوشل سیکورٹی نے بہت بڑا انیشیٹو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ جو 3,000 ہر ورکر کو مہینے کی یہ سہولت دی جا رہی ہے. مہنگائی کے دور میں اماؤنٹ تو شاید یہ بہت چھوٹی نظر آئے، لیکن ایک اس آدمی کے لیے جس کی بڑی لمیٹڈ سی انکم ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑی سپورٹ ہے. اچھا سر، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ بھٹا مزدور جو ہیں وہ بھی آپ انہیں بھی رجسٹرڈ کرتے ہیں، اور دوسرا ہمیں یہ بتائیے گا کیا یہ تو آپ نے کارڈ کا بتایا کہ 3,000 گورنمنٹ دے رہی ہے، ان کی ویلفیئر کے لیے جو فنڈ ہوتا ہے گورنمنٹ دیتی ہے یا پھر آجر جو ہے وہ ان کے لیے پے کرتا ہے اپنے ورکرز کا؟
सोशल सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा निज़ाम है जी। इसकी पॉलिसी जो बनाई जाती है उसमें गवर्नमेंट है एक साथ एम्प्लॉयर का नुमाइंदा जो मालकान है, और इसके अलावा जो लेबर है उसके नुमाइंदे बैठते हैं, जिसको हम गवर्निंग बॉडी, पैसे की गवर्निंग बॉडी जो है वो बैठकर फैसले करती है मुशावरत से। इंडस्ट्री से भी ली जाती है उसकी आउटपुट, इसी तरह जो लेबर है उससे भी, और गवर्नमेंट की तरफ, तीनों एक नुक्ते पे इकट्ठे होकर इनकी वेलफेयर के लिए, सही। और जो जितना 100% इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर देता है उस इंडस्ट्री का। ये सारा जो है, ये जो हमारे मोहतरम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी सैलरी का 6% हम लेते हैं। 40,000 का इस वक्त को 2400 पर मंथ वो एक वर्कर का देते हैं, और हम उस 2400 के अगेंस्ट क्या करते हैं कि बेनिफिट्स की डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक पोर काम करते हुए बंदे की कट जाए, हम उसकी पेंशन अवार्ड कर देते हैं। अच्छा, अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट होता है, जब काम करते हुए उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके दौरान उसकी कोई अजाज आया हो गया, तो हम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से पेंशन लगा देते हैं, डिसेबलमेंट ग्रेजुटी देते हैं। अब हमारा देखें पंजाब में मुख्तलिफ सेक्टर्स में ख़वातीन भी काम कर रही हैं। ख़वातीन के लिए सोशल सिक्योरिटी में मैटर्निटी लीव की एक असूल है कि 90 दिन के लिए हम उसको मैटर्निटी लीव देते हैं। जब वो वर्कर छुट्टी पे चले गए तो फैक्ट्री तो तनख्वाह नहीं देगी, सोशल सिक्योरिटी उसको उसकी जितनी सैलरी थी, जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन आ रहा था, उस परसेंटेज के हिसाब से उसको उतनी सैलरी उतने अरसे में देगी। जबरदस्त। इसके अलावा अगर कोई मजदूर बीमार हो गया, हमारे डॉक्टर ने उसको लीव रिकमेंड कर दी है, जितने दिन वो छुट्टी पे रहेगा घर का निज़ाम चलाने के लिए सोशल सिक्योरिटी उसको सैलरी पे करेगी। सही, जबरदस्त। ये तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट आप कैसे करते हैं? अगर कोई भी लेट्स सपोज एक मजदूर है, किसी छोटी सी दुकान पे या वर्कशॉप पे काम करता है, तो कैसे पता लग सकता है कि ये सोशल सिक्योरिटी का हकदार है और वो खुद को रजिस्टर करवाता है, या कुछ क्राइटेरिया, कोई मुहिम भी होती है खुद से हंट करने की? हाँ, देखें, सोशल सिक्योरिटी में जाने के लिए हमें रहना पड़ेगा उसी सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के अंदर रहना पड़ेगा। हमारे ऑर्डिनेंस में एक डिफाइन की गई है कि एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी अदारा, जहाँ पहले 5 थे, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि 2 या 2 से ज़ायद जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी के दायरा कार में आते हैं। हम हमारे फील्ड ऑफिसर उधर जाते हैं, अगर कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा तो हमारे पूरे पंजाब में फील्ड फॉर्मेशन है, वो विजिट करती है, विजिट करके उसको पॉइंट आउट करती है, लेटर डालते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं कि आप आएँ। और सोशल सिक्योरिटी कोई वो इन्फोर्समेंट ज़बरदस्त, मैं आपको बताऊं कि ये सर्विसेज से इन्फोर्समेंट करते हैं। ये कहते हैं कि हमारी सर्विसेज देखें, हमारे जो बेनिफिट्स हम वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप देखें। हम 2400 लेकर 3000 तो हर महीने उनको वैसे राशन कार्ड में दे रहे हैं, और मेडिकल केयर फैसिलिटी इसके अलावा है, बेनिफिट्स 14 किस्म के अलावा, यानी कार्रवाई की बजाय कन्विंस करते हैं। हम अपनी सर्विसेज पे भरोसा करते हैं। सोशल सिक्योरिटी कहता है कि मैं अपनी सर्विसेज को पेश करता हूँ, आपको अगर अच्छी लगती है तो आएँ, कानून जोर से नहीं, हम कन्विंसिंग। अच्छा, बहुत सारी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, हमें बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल्स भी हैं, कार्डियक सेंटर भी हैं, मुल्तान रोड में भी, लाहौर में है, शादरा में भी हॉस्पिटल है। बताइएगा इसके अलावा कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन कौन से मेडिकल सेंटर्स हैं आप चला रहे हैं, वर्कर की फलाह बहबूद के कौन से मंसूबे हैं और कौन से मज़ीद ऐड हो रहे हैं उसके? जी, हमारे पंजाब में 22 बड़े हॉस्पिटल हैं। अच्छा, इसके अलावा 272 से ज़ायद मेडिकल यूनिट्स हैं, जिसमें BHU, सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी, एमरजेंसी सेंटर्स हैं, और पूरे पंजाब में हमारा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वाइड है। और जहाँ पे भी वर्कर की हमें पता चलता है जी यहाँ पे वर्कर है, हम पहले उधर डिस्पेंसरी बनाते हैं, वर्कर को उधर उसके साथ मुंसलिक होते जाते हैं, कार्ड बनते जाते हैं उधर आकर अपने। और हमारे कमिश्नर साहब ने देखे रिवाइज बजट में इस वक्त उन्होंने हर जो डिमांड की गई है मजदूर के लिए, उन्होंने कहा मैं ये बेनिफिट भी दूंगा। अगर मेडिसिन के कहीं के पे कट नहीं लगाया, अच्छा, उन्होंने कहा मैं मजदूर के लिए एक एक पैसा खर्चने के लिए तैयार हूँ। सही। अच्छा राशिद साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि बहुत सारी चेंजेस आई हैं, माजी के हिसाब से अब क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और मुस्तकबिल में क्या क्या मंसूबे हैं जिस पर काम किया जा रहा है, और लेबर रजिस्ट्री का मंसूबा जो बहुत बड़ा है, और इस पर क्या अपडेट्स हैं? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने, गवर्नमेंट ने तो एक ऑनलाइन सिस्टम दे दिया जी, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएं। जब उसने बिजनेस रजिस्टर्ड किया, उसी ईमेल पे हम उनको एक लॉगिन भेज देते हैं कि ये आपका अदारा रजिस्टर्ड है, अब आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी में अब ये है कि इसने बड़ा
अच्छा ये किया है कि एक ऑनलाइन सिस्टम ऑनलाइन दिया, सिस्टम हाँ डिजिटाइज है, मुकम्मल तौर पे डिजिटाइज है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अगर एक एम्प्लॉयर हूँ तो मैं यहीं पे बैठ के अपनी अदायगी भी कर सकता हूँ, अपनी पेमेंट भी कर सकता हूँ, अपना वर्कर भी रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। मुझे दफ्तर के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल सिक्योरिटी हर वक्त मजदूर की वेलफेयर के लिए तैयार है, और हमने वर्कर की रजिस्ट्रेशन के लिए उस एम्प्लॉयर को एक लॉगिन दे दिया कि आप मजदूर की जो है इंफॉर्मेशन इस पे अपलोड करें, हम उस पे राशन कार्ड बनाकर उनको डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा राशिद साहब, हमें बताइएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आजिर की जिम्मेदारी है, लॉगिन भी आप लोगों ने अपने एंड से तमाम तर सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड की हैं, फैसिलिटेट की है। लोग कितना कोऑपरेट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फिर ये हम देखते हैं कि जो राइडर्स हैं, फूड राइडर्स हैं या और डिलीवरी राइडर्स हैं, क्या ये भी रजिस्टर्ड होना शुरू हो गए हैं? और कौन सा शोबा ऐसा है जहाँ पे लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो मज़दूर है उसको अपने राइट्स जानने के लिए रजिस्टर्ड होने का पूरा हक है और होना चाहिए उसे? इसमें मैं अर्ज करूंगा, जैसे आपने फरमाया राइडर्स हैं, अब राइडर जो है वो पीछे किसी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, वो किसी ना किसी फूड पांडा के साथ है या कंपनी किसी ऑन करती है। ABCD के साथ वो मुंसलिक है। हम उस राइडर को नहीं टारगेट करते, हम उस एम्प्लॉयर को करते हैं जिसके लिए वो काम कर रहा है। हमने फूड पांडा ये वो सबको हमने जाकर रिक्वेस्ट किया और हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, और हमको उनको ये भी कह रहे हैं कि ये अपने डाटा दें। हमारे पास एक्चुअली क्या है, जो ही कोई डाटा देता है ऑटो पे लगा हुआ है। अच्छा, हमने जो ही उसने डाटा अपलोड किया, हमारा अगले प्रोसेस पे चला खुशाइन बात गया, यह है एक कि से ये दूसरे से registered है आपके तीसरे साथ। रजिस्टर्ड है जी, हमारे पास रजिस्टर्ड है। असल में ये है कि अनअवेयरनेस है, लोगों को सोशल सिक्योरिटी के बारे में जो ही आगाही आएगी, हम तो ये कहते हैं जी आएँ, हमारे हॉस्पिटल देखें, हमारे बेनिफिट्स देखें, हमारी ये राशन कार्ड जो CM पंजाब ने अभी इनिशिएटिव लिया है, राशन कार्ड पे कारकर्दगी को देखें। अगर हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर भी हमें खुशी से कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जी जबरदस्त। अच्छा, और राशिद यही साहब- मकसद होता है कि इस टॉपिक को डिस्कस करने का भी, कि लोगों को समझ हो सके कि सोशल सिक्योरिटी एक्चुअल में वर्क क्या करी। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेट्स सपोज किसी मजदूर को कुछ हो जाता है, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि अगर उंगली पर कट भी आ जाता है तो उसके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के हवाले से भी। लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो अहले खाना के लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह से सोचा जाता है। दुराने कार अगर किसी वर्कर की एम्प्लॉयमेंट डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो जो वो सैलरी ले रहा था उसके सर्वाइवर पेंशन हम उनको अवार्ड कर देते हैं। उसके लिए उनको सिर्फ एक दफ़ा एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है, उनको कोई दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत, वो भी बल्कि अपने मोबाइल को पकड़ेंगे, उससे मोबाइल एप्लीकेशन है अपलोड करेंगे, हमारा सिस्टम उसी वक्त, अगर कोई किसी के पास डिले है 1 घंटा 2 घंटे 24 घंटे के बाद वो रेड एंट्री शो हो जाती है। फिर उसके साथ हम पूछते हैं कि आपने 24 घंटे तक क्यों इसको रोका हुआ है। इसलिए कोई बंदा भी जो है जिसको ड्यूटी असाइंड है वो अपने परफॉर्मेंस विद इन प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम उसको, यानी डिजिटल है लेकिन चेक एंड बैलेंस भी है। balance वेरी है, गुड। check अच्छा राशिद साहब, हमें ये भी बताइएगा, कुछ ऐसा भी होता है कि आपके हॉस्पिटल्स जो हैं उन पर अचानक कोई बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है, केसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो या फिर कोई इस तरह का कोई स्पेसिफिक इलाज है जो वहाँ पर नहीं हो पा रहा, कहीं और से करवाना मकसूद हो, तो उसके लिए आप किसी और जगह पर किसी और हॉस्पिटल को पे भी कर देते हैं उस मजदूर के इलाज के लिए? देखें जी, कार्डियक सर्जरी तक तो हम कर रहे हैं और हम क्लेम करते हैं लाहौर के किसी भी हॉस्पिटल से, आप निजी या सरकारी से कंपेयर करें कि पैसे का कैसा। हमारा हॉस्पिटल वाहद हॉस्पिटल है जो पेपरलेस चल रहा है, डिजिटाइज है सारा, पेशेंट को कोई कतार में नहीं लगना पड़ रहा, बड़ी बड़ी फाइलें नहीं उठाई हुई नहीं, कोई कुछ नहीं, हर चीज हमारा डिजिटाइज है जी, उस पे जाएगा। हम कहते हैं कि लाहौर के किसी हॉस्पिटल से आप हमारा RAIC को कंपेयर करें, आप खुद विजिट करें, मैं दावत आपको देता हूँ, आप खुद लोग विजिट करें और देखें कि इसमें क्या हो रहा है। आप खुद, मैं अगर अपनी खुद ही तारीफे करता जाऊंगा, पैसे भी हमारे पास वर्ड ऑफ माउथ भी मौजूद है राशिद साहब, बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं और हम ऐसे कार्डियक सर्जन्स को भी जानते हैं जो वहाँ पे सर्जरीज करते रहे हैं और वो बताते हैं कि बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है वहाँ पर और लोग बहुत सेटिस्फाई हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम जो है वो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो पैसे ही कर रहा है।